I don't understand. After 4 days break, the classes started. Why people would be regular or absent? Why wouldn't they all come today? It's a Monday evening, fresh start after the holidays. Yes. Try it one more time. Good evening, sir. Evening, Kaya Beta. Let me try it one more USB device. I hope it will work. Do that. Let's see. USB device. Inexpensive device, 8,000 rupees. I'm very nervous about it. No, unfortunately, the one is gone already, lost. Oh, I have no idea. One day I just noticed there's only one. The other is not here. I think I might have forgotten to take it off and might have gone out and it might have fallen. Who knows? Yeah, well, the receiver is connected. Yeah. Hmm. Got another, but even this is not working. I tried to make use of this, but even this is not functioning. Is it the mic? Take the mic. No sound. No sound. Remove the mouse using and put Your voice is breaking up. It's the my network problem or you? Today my mic is not the best quality, Sabaji. I'm using my camera mic because my mic isn't working. So just manage with poor quality audio. Is it manageable, guys? Yep, yes, sir, it we is. can. I I know it is not digital quality that you are used to, because that's an expensive 8,000 rupees mic, and an 8,000 rupee mic, not rupees, an 8,000 rupee mic. When you use these words as an adjective, you don't use the plural. A 40-year-old man, not 40 years old man, right? Wait. So welcome back after the long holidays. I never enjoy, you know, get bored. But this time it was a relief that we had long holidays because I was unwell and I simply rested, didn't go out, didn't step out of my house. My wife went out with her papa. He came to visit the fair with her, and my children were in Mumbai. So I had no reason to go out.
And where is dear Zafri? Um, so guys, you want to study? You're in the mood to study? Sam is not in the mood to study. What about other Yes, people? sir. Yes, sir. Today I am not in mood actually. Are in the mood to study. What about you, Manisha? So yeah, I want to study. But you sound sick. Okay. Sir, yes, I have a stomach ache. Ah, okay, okay. Yes, I want to. You want to study? Yes, sir, because I am studying after a long time. I Ye- didn't attend four class earlier. Then he gave us holiday. Yeah, exactly right. Okay, yeah. So you're here after a long time and you don't want to waste that time. Okay, so let's see what we have here to study. If someone not ready for study, I mean, Zafri asked me a very interesting question today, but that was out and I answered his question, and I had told him that if you are here, we can have a little chat about it in the class as well. He what study is? he asked what blasphemy is, and it's a very interesting thing, Most people who are smart cannot disagree with a very, very simple point of view. I presented in front of him and he agreed, and yeah, smart people think in a different way. Stupid people think differently. So yeah, when he's here, maybe we can talk a little bit later. But right now, we will study. So what are we going to study? Unit 3, 4. We are in Unit 4. Have we started Unit 5 already? I am nothing. So Zafri, you want to study, Zafri? Let me be on camera. Good evening, sir. I hear lots of noise, Zafri. चलिए हटाइए ना देख Okay, why was he hiding his face? Somebody was hiding his face. Who is it? Ah, I see. They are in Kolkata now. All right. How are you doing, Ashok? Is it Mashood? Yes. Sir, who is this boy? Very handsome. His name is Mashood. Okay. Well, well, I'm pretty annoyed already, Ravi. I'm very annoyed with my mic failure. You know, I have no idea why it is happening, and I've got this bad, big fear at the back of my mind. If my mic has got a problem, I don't know how I'm going to handle that. It's an 8,000 rupee mic, and I've done nothing to damage it, by the way. Okay. I hope Hollyland has a good service because, it's a branded mic. So, yeah. So he's there. Arish, be on camera, guys. Why do I have to ask you guys all the time? Please, everybody. I hate it, being repetitive. ये मैंने अभी इंग्लिश बोली है किसको समझ में आएगा ये hate it being repetitive किसको समझ में आएगा सिर्फ उसको इसको लैंग्वेज की फीलिंग है और जो रूल्स वगैरह सोचेगा वो पगलाता रहेगा क्या बोला जाता है आई हेट इट बीइंग रेपिटेटिव तो मुझे बार बार एक ही बात दोहराना अच्छा नहीं लगता हेट इट बीइंग रेपिटेटिव अब बोले कि ऐसा कैसे है तो
very advanced level spoken English rule. आप pronoun पहले बोल दें, बाद में उसके बारे में noun बोलें. Okay? पहले pronoun बोल दो, बाद में noun बोलो जिसके लिए वो आया है. That is a very common thing to make your statement more emphatic. It is very commonly used in commentary. You know, he's a fantastic batsman, Rohit Sharma. He's a fantastic batsman, Rohit Sharma. अभी रोहित शर्मा को टीम बोला है fantastic batsman. तो हम लोगों ने रोहित शर्मा इज फैंटास्टिक बैट्समैन. यस, करेक्ट. लेकिन ये इंग्लिश का स्टाइल है. आप पहले प्रोनाउन बोल देते हैं, बाद में नाम बोलते हैं. ही इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, रोहित शर्मा. तो दिस स्टेटमेंट मींस रोहित शर्मा इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन. तो जब हम लोग पढ़ते हैं a pronoun is used to avoid the repetition of a noun, it's a basic rule, of course, but there is more to it. Sometimes you use a pronoun even before you use a noun, just like this one. He's a fantastic batsman. Like I said, I hate it. क्या? It क्या था? Being repetitive. अगर मुझे इसको normal बोलना है, if I want to say it in a normal way, I'll say I hate being repetitive. I hate. Okay. Being repetitive means to repeat something again and again. I mean, repetition is again. Again is unnecessary. To repeat something. And of course, I have to already repeat certain things all the time in the class. But I hate to say, turn your camera on, turn your camera on. It's not a fun thing to say. Okay, anyways, coming back to this letter that you guys read, and there are adjectives. You see, you notice that the word nice has been used too many times here in this text, in this letter or postcard. So you're going to replace the word nice with these adjectives. All these adjectives are positive adjectives. Adjectives can be put into three categories. One can be positive adjective, one can be negative adjective. It means you'll always use them to criticize someone or something, right? Positive adjectives are always used to say something good about somebody or something. And there are neutral adjectives which you can use the way you want them to, okay? Positively, negatively, either way. But most adjectives fall in this category, positive or negative. So here we have some positive adjectives. So adjectives have connotation. The word is connotation, positive connotation. For example, Bhagat Singh was a freedom fighter, right? This term freedom fighter has a positive connotation or negative connotation? Positive. It has a positive connotation. So Bhagat Singh was a freedom fighter. Who said? Indians, right? What did the British say about him? Yeah. What did the British say about him? He's a bomber. He's a terrorist. Yeah. He's a terrorist. And that's why he was hanged. Yes. He was given the death punishment because they looked at him as a terrorist. Do you think we can agree to that point of view? No. Bhagat Singh was a terrorist. Not at all. So, words have connotations. Words have connotation. Connotation means emotions attached to them. Positive emotions, negative emotions. So when you learn a word, sometimes you need to learn the connotation of the word, whether the word has a positive connotation or a negative connotation. So all these adjectives have positive connotation, right? You use them to say something is good. So let's go ahead and do this exercise. We are having a or an. You know what? Multiple options are possible. You can say we are having an excellent time in the Alps. You can say we are having a fabulous time in the Alps. You can say we are having an amazing time in the Alps. You can say we are having a wonderful time in the Alps. All four words can be used. Lovely. We are having a lovely time in the Alps. I hope you understand. Good time. We are having a good time in the Alps. Okay, all are possible. They all convey that you are enjoying yourselves in the Alps. In the Alps. Alps refers to a mountain series, right, everybody? The Alps, the Himalayas, right? Or the way they say Himalayas, Himalayas, okay? But we will pronounce it Himalayas because Himalaya, okay? The name is Himalaya.
They can't pronounce it. Himalaya doesn't mean the name changes. It is Himalaya, right? Himalaya. Himalaya. Alaya means house, home. Vidyalaya. Vidyalaya. Alaya means home. Okay. So Himalaya, the home of snow. So Himalaya. Okay. Anyways, we are having a wonderful time in the Alps. We're having an excellent time in the Alps. We're having a fabulous time in the Alps. We're having an amazing time in the Alps. Everything near Mont Blanc. The mountains are, the mountains are, the mountains are beautiful at this time of year. The mountains are excellent at this time of year. The mountains are fabulous at this time of year. The mountains are wonderful at this time of year. They all make sense. They all mean that you love the mountains look. You can also say the mountains are out of this world at this time of year. Out of this world means very, very positive. That's all you need to know. You like somebody or something, you say it is out of the world, it is out of this world. You ate rasgullas and you love the taste. So your reaction, oh, it's out of this world. You saw a girl at a party and you're talking to a friend about, oh, she was out of this world. So, positive, you describe something you like in a very strong way. These are all very strong adjectives except for good. Clear and sunny is clear and sunny. You use them literally, clear and sunny. You obviously describe the weather with clear and sunny. Spectacular, this adjective is used to describe something that you appreciate with your eyes. You listen to music, okay? Rarely people say spectacular music. They don't say that, okay? Because something that is spectacular is enjoyed with your eyes. That's why you describe that thing as spectacular. A spectacular shot. You enjoyed watching it. Okay. So I hope I've explained the word spectacular a little bit. It is something nice, something positive, and you enjoy it with your eyes. Moving on. The mountains are at this time of the at this time of year. At this time of year is a nice phrase. Learn the phrase at this time of year. Saal ke samay pe. Okay. The weather is very dual nature at this time of year. Sometimes hot, sometimes cold, right? Three. There are lots of beautiful wildflowers, fabulous wildflowers, excellent wildflowers, lovely wildflowers, spectacular wildflowers. Okay. Any problems? All these adjectives can be used. Sir, This, a spectacular means. okay. What did I tell you? Just you have to repeat what I told you. That's all you have to do. I talked about the word spectacular. You need to repeat what I said. And then I will answer. Did I talk about the word spectacular, Manisha? Okay. Obviously, she was not paying. Okay. Sorry, Manisha. This way you cannot do acquisition of language. Language acquisition, I have talked about it in great detail in one of the videos that I recommended you guys to watch. It is impossible to acquire, to do language acquisition without being fully involved in the activity. You forget that you're learning a language when you're involved in it. Okay? You just enjoy the conversation, you enjoy the topic, you enjoy the subject matter, and you forget about language learning. And then acquisition happens subconsciously. This is why young children are told stories. Lovely, interesting stories. The children are totally absorbed in the story. They come across a lot of words and phrases which they have not heard before. But because they're so fully involved in it, all these things are acquired slowly and slowly. So acquisition happens only when you're fully involved. Manisha is not involved. She doesn't even remember I talked about the word spectacular. What all did I tell you guys? Spectacular is something nice, but you appreciate it with your eyes.
You saw them. Yeah, something that you can see and appreciate that it can be spectacular. And that's why I give an example that you don't hear spectacular music very often Yes. because music is appreciated with your Yes. ears, not with your eyes. Yes. So I've already said, and I'm not going to repeat myself. Doesn't matter how busy you are, what your problems are. I can, as a person, understand and appreciate your problems. English will not. There are certain rules for language acquisition. You have to follow them. The rule number one, and the most important rule is you are fully involved in the activity taking place. And that's why I said perhaps that class, do you feel bored with me? If you feel bored with me, forget about learning. You need to find a person you enjoy being with. That's the most important feature. You see, a lot of teachers fail to bring results because the students do not find them interesting. Okay, if you don't find your teacher interesting, it means you will not enjoy listening to him or her. And if you are not enjoying listening to him or her, you can only do conscious learning. What about subconscious acquisition? That's not going to happen because you don't find your teacher interesting. You don't really get like this excited. Oh, what is he saying? What is she saying? So this is why a teacher has to be charming, interesting. And again, same person cannot be interesting and charming to everybody. So those who find the teacher interesting and charming benefit from being around or being with the teacher. In language acquisition, that's very, very important. As far as conscious learning is concerned, anyone, even a robot, can explain rules to you and you will say, okay. Because that's conscious learning. You have to be told the rule. You'll say, okay. For example, whether a robot tells you or a person, after has or have, we only use the third form of the verb. Okay, fine. That is conscious learning. That after has or have, we will always use the third form of the verb. Any other form is not possible. If you have used a has or have, okay, you will always have a third form. Had is also a form of had. So after had also, a third form is only possible. You cannot use has or have plus V1, has or have plus V2, has or have plus V4, has or have plus V5. Impossible in English. Now, whether I tell you this or a robot tells you this, you'll learn the same stuff because this is conscious learning. It is not acquisition. But right now, I'm talking to you as well in English, right? And this conversation is giving you that subconscious acquisition, not the rule that I explained. I was talking, and that experience, that process is important for language acquisition. So whether I talk about this grammar rule or I tell you a stupid adult joke, doesn't matter. Acquisition will happen as long as you find that joke interesting. Whether I talk about an erotic story, I'm just going all the way. I'm not mincing my words. I'm making it crystal clear to everybody. Whether I tell you an erotic story is about a subject matter that makes you sexually excited. That is called erotic. Okay? So even if I tell you an erotic story, if you are interested in that story, you are doing language acquisition. It will help you with your speaking. As simple as that, guys. In order to improve your ability to speak better English, you just need to do language acquisition. And that acquisition only takes place when you're listening to something that you're fully involved in, you're very interested in. And I will not mind saying this, a lot of young people can absolutely learn English while they are wasting their time online, whatever entertainment you do it in English. By the way, a lot of people love reading erotica. Erotica is literature about erotic things. That is called erotica. Okay? So erotic is an adjective. Erotica is a noun, which means literature which comes under that genre. Okay? If it is a story about a god, goddess, it is not erotica, right? Erotica is about sexual matters so that you can feel sexually excited.
So, of course, a lot of young people read erotica, okay? But if they do that reading in English, it will definitely help them improve their English. Again, subconsciously, they won't even realize it. So you don't have to study serious things, okay? Study academic stuff in order to improve your communication in English. It can be anything. Just have to. You have to expose yourself to quality language and you have to be fully involved. Now, if the erotica is written by somebody whose English is poor, then you're not going to benefit from it. But if it is written by somebody whose first language is English and has got good skills in writing, uses quality, structured words and expressions, of course you'll benefit from it. Because who told you that the subject matter matters? The language matters, and the language is high quality, you'll benefit from it. So, yeah, spectacular means something that you enjoy looking at, something that gives you pleasure when you look at it. Yeah, it is beautiful to watch. Something spectacular is beautiful to watch. Yeah. Fine. So mountains are spectacular at this time of year, makes sense because you will appreciate the beauty of the mountains with your eyes. There are lots of beautiful, spectacular can be used here as well. Wildflowers, okay? Flowers which are lovely to look at. Spectacular. We had lunch in this fabulous restaurant, amazing restaurant, lovely restaurant, a beautiful restaurant. But will you say delicious restaurant, guys? No. Will you say clear and sunny restaurant? No. There are only a couple of adjectives which will be used in a very narrow context, and that is weather. Clear and sunny describes weather. Yeah. Okay, the weather, and delicious describes Of course. food. But I was watching this last match T20 between India and Bangladesh, and you guys saw the way Indian batsmen batted. They have taken their game to a level where teams like Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka cannot even compete with them. It's impossible. It's like, those days when we played against Australia and 90% times we lost because our skills were not that great. Indian players didn't have the skills to match Australians. That's as simple as that. Why do we win more often than not against Australia today? Because our skills, our batsmen, our bowlers have improved their skills. They have taken their game to to another level. And that's the thing, it was real insult to the Bangladeshi team. And this is a perfect reply to a team. I hate the Bangladeshi team. I don't use the word hate, but I hate their team. I have not forgotten their Nagin dance. I have not forgotten their newspapers' response with Dhoni's head when they defeated India in 2007 World Cup, I think it was. But whenever that happened, I just hate their team. I don't hate Pakistani team, but I hate the Bangladeshi team. And I want to see them losing every time they play against anybody. I was very annoyed that they defeated Pakistan. And out of excitement, they said something about Indian tour now. That guy, one of the players, made some statements in the media before they came to India. They didn't know they were coming against a giant, And this is called, thrashing of the kind that your generations will not forget. This tour has dented their confidence, their self-belief in a way that is almost impossible to overcome in their lifetime. If these players will ever play against India, or whoever played in this series, they are going to remember whatever happened with them. Oh my God, they were helpless. Absolutely helpless. And it didn't happen once. It happened in every single match. And the start was when Rohit Sharma decided to play unforgettable form of cricket in test match. Run rate of 8 runs and over. Only 2 days were left, and he said, it doesn't matter if we get out for 100. Let's go and attack the team. And they got the results. Within 2 days, they wrapped up the Bangladeshi team twice.
you know, unbelievable. Okay, where were we? Yeah, look, what happened just now? If anybody who was interested in this conversation, they got involved. Okay, what did he say? Yeah, I agree, I disagree, yes. Got involved. Then you are doing language acquisition. And if you, by the way, detach yourself, "Bhai, mera topic nahi, mera interest nahi hai," then it was absolutely futile for you. Futile. Okay? It was waste for you, total waste. So, whatever you're listening to, if you do not find it interesting, most important word, if you do not find it interesting, it's not going to help you with your language acquisition. Keep it in mind. So the first condition is it has to be interesting. And then second is it should be easy. It shouldn't be difficult at all. And then only what happens next will matter. Okay. These two qualities are the most important qualities in whatever you're listening to. It should be interesting, interesting to you, not interesting universally. Okay. You have your own taste. Whatever it appeals to you. Okay. Whatever you find interesting. Yeah, people with wider interest learn languages faster because they have interest in so many different topics, subjects, that anything people talk about, they get interested and they improve their vocabulary subconsciously. And if your interests are limited, if you're only interested in one or two things, then of course you find it difficult to learn a language. This is why people in my class who have very limited hobbies or no hobbies find it usually very difficult to learn a language. And there are people who are very interesting. Those people are interesting, I'm saying. It means they have lots of different hobbies, interests. They talk about different kinds of stuff. Usually they get more interested in the topics, whatever you're talking about. Now, girls are sitting there and we are talking about cricket. But then it is futile. They're not going to take interest because they're not interested in cricket. So that conversation is not going to help them with their language acquisition. So, say, like, have you watched the cancer video of blood cancer? Like, DKMS is a organization. There's like when somebody has suffered with blood cancer, the cure of blood cancer is not by some stem cell or something else which pH factor. If you are having this blood pH, you cannot, your pH and your brothers or everyone pH is different, not by the blood like blood groups. Okay, then you have, they provide a kit. You have to swab in the mouth and put it. It's a free because of some organization they provide money for this, and you tested. If somebody matched the in globally, if matched, then you give blood if you want. That's amazing. So, because of this, Science keeps surprising us. yes. I have shared a very sarcastic post on Facebook. I have put, not shared, I have made that post. I don't know how many people will understand. Just want to show you guys a little. I have told you already, people who have got smart mind think differently than people who are stupid. Stupid people, they are the biggest. I will not say fault. It is, they are victims. They don't have a mind that works. Okay, so let's not talk about them. But yeah, see, the battering will start them for good. I was very, excited watching that match. Yeah, this I couldn't believe after scoring 550, they lost the match by any means, Pakistan. Here, this match, read. Everybody, if you have any common sense, try and understand what I've written. Almighty isn't going to inflict millions people from the land with man-made boundaries. Now, why had I had to write this? With blindness caused by trachoma anymore. However, some other people in this world will not enjoy this amnesty from God. Okay, first of all, vocabulary. Inflict means to, if somebody inflicts something negative on you, okay, then you experience it. Okay,
I will inflict pain. They inflicted such insult to the Bangladeshi team, okay? On the Bangladeshi team, inflict something on somebody. So inflict. Almighty isn't going to inflict Indians with blindness caused by trachoma. Trachoma is a very, very bad disease. And once somebody gets trachoma, they become blind and it is not curable. Okay? It was blindness that is caused by trachoma is incurable. It means if trachoma affected you, you're going to be blind and there is no solution. There is no treatment. You will be blind all your life. Now, thousands of people have, not thousands, lakhs of people have been affected by this disease. Everybody who believes, like you guys, will say, God did it, of course. It was God's will that he will catch trachoma. Okay, trachoma is a disease that affects your eyesight. And if it affects you, you will never be cured again. There is no cure for trachomas, blindness that is caused by trachoma. Now, the thing is, India is not a special country. God did not create India. God created the earth. Am I right, guys? God created the earth. God created the earth and God created human beings and God created our destiny. Who will have eyes? Who will be born without eyes? Who will lose his leg in an accident? Who will lose his eyesight because of a disease? It was God's will. Say it was not. Okay? But let me tell you something. Okay? Now, people were born in this boundary, which we call India, and it is a man-made boundary. God did not create this boundary. Man has created this boundary. Okay? In 1947, we got this boundary. Now, anyone born in this boundary, within this boundary, will never go blind because of trachoma. No matter which God wants him to go blind. Because we have pure trachoma infection. Indians will not be blind anymore because of trachoma. But anybody born on that side of the boundary can be blind because of trachoma. Somebody born on the other side, which is called POK or Pakistan, okay? People born there can have this blindness. God has not offered this amnesty to people outside India, only the Indians. There are some other countries in Asia, but it is not Pakistan. Okay, it is not some other countries which are poor and they don't have money to invest into scientific research or jigger for scientific research, unfortunately. So those people will not have this amnesty from God. Amnesty means friendship. Amnesty means forgiveness. I'm using all this vocabulary to again, I'm writing this for those who understand English because I'm a teacher of English. I could have written this in Hindi in the equally, I will say teasing way. It is a very, sarcastic language. Okay, for somebody who understands English, you will find it is a very sarcastic language. Because what else can I say? If you can't understand these things, you have created a boundary. People are born everywhere, and they're all born because of God's will. Okay, but only people inside this boundary will not catch trachoma. Even we look for trachoma nahi hoga. And there are a few other countries in the world which have found complete cure of trachoma. Means trachoma hoga nahi because ho jayega fir to just like polio. If polio affects you, then you go, you can't walk. What you can stop is polio from affecting you, right? Infecting you. Now, in India, you don't catch polio. अब यहाँ कोई भी गॉड है, जो भी नाम लेते हो आप लोग, ठीक है, उसकी औकात नहीं है कि हमारे देश के किसी बच्चे का पैर नंगा कर दे पैदा होने के बाद, लेकिन वही कर रहा है दूसरे देशों के बच्चों का पैर नंगा हो रहा नहीं हो रहा है दोस्तों, ठीक है, गॉड कर रहा है पैर नंगा, क्योंकि हम इस बारे में गॉड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का मानना है हमारे लाइफ में जो होता है किसकी मर्जी से होता है, और ये आप लोग ऑर्डर करके जाएंगे टेस्ट है जो, तो ये यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा भाई, और हर लोगों को ये टेस्ट नहीं मिलेगा, लंगड़ा होने वाला, ये ट्रैकोमा से अंधा होने वाला, क्योंकि इसके रिसर्च करके इसको खत्म कर दिया गया, जो भी करना था इसके लिए काम करके खत्म कर दिया गया इंडिया से। तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, सारे लोगों को मैं कह रहा हूं जो लोग इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू अप्रिशिएट हाउ अ कंट्री मूव्स फॉरवर्ड।
अच्छा एक बात बताओ, ट्रैकोमा इज अ डिजीज व्हिच इन्फेक्ट्स एंड मेक्स यू ब्लाइंड। अगर ये प्रायोरिटी लिस्ट पर नहीं होती हमारे देश में तो ये खत्म होता। कभी किसी पॉलिटिशियन ने ट्रैकोमा के बारे में बात की थी? तो उसके लिए कैसा कौन सैंक्शन करता होगा कि ये सब चीज पर काम करेंगे? क्योंकि डिसीजन कौन लेता है? पॉलिटिशियंस ना। But unfortunately, people here are not interested in stuff like this. अच्छा ये कुछ हुआ है? Did you know about this news? कहीं बता दो, किसी को पता था? ट्रैकोमा, अच्छा पोलियो नहीं होता भारत में किसी को। Polio doesn't infect you anymore, but still infects people outside. The other, देखो फिर से वही बोलता हूँ, पाकिस्तान was India, लेकिन वो बाउंड्री खींचने के बाद अब इंडिया नहीं कहलाता। Still people catch polio in Pakistan. Why? उनके उनके डेस्टिनी में ये बात क्यों है भाई कि वो अभी तक उनको ऊपर वाला पोलियो दे ही रहा है? अगर इतने से भी नहीं क्योंकि है नहीं समझ में आता है तो मैं सिर्फ कहता हूँ कि दो दो चार जोड़ना नहीं आता, तुम्हें पांचवी समझ में आता है, करते रहो दो दो पांच। कोई रोकेगा नहीं तुम्हें, कोई नहीं रोकेगा। क्या वजह है कि यहाँ कोई भी इंसान पैदा होगा भारत में उसको पोलियो नहीं होगा, कितने सालों से नहीं हुआ है, ठीक है? और अभी भी हो रहा है। ट्रैकोमा से अब अंदर नहीं होंगे इंडियंस, लेकिन यही इंडिया के बाहर चारों तरफ देखो तो वहां लोग हो जाएंगे अंदर। क्यों? ऊपर वाले उन लोगों को क्यों ले दिया एमनेस्टी, खाली भारत वालों को क्यों? और ये चाह के भी नहीं कर सकते तुम, ये पोलियो नहीं पैदा कर सकते, तुमने उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। तो ये बताओ मेरे दोस्त कि ये एक मुट्ठी भर के लोगों के लिए सोल्यूशन क्यों हो? ये बाउंड्री का क्यों सोल्यूशन? क्योंकि यहाँ एक गवर्नमेंट है, यहाँ के लोग इस बात पे काम कर रहे हैं, तो खत्म किसने किया? लोगों ने। अगर ये डिसीजन ऊपर वाले का था तो एक सर्टेन एरिया के डिसीजन दिया, अब जैसे भी ऑर्गेनाइज तक चलो लाते हैं आर्गुमेंट को, आपके ऊपर वाले की मर्जी थी तो ठीक है, ऊपर वाले की मर्जी से। आप मुस्लिम में तो आपके लिए खास करके ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? कि यहाँ तो वाले को नहीं मानने वाले ना, अल्लाह को नहीं मानने वाले ना भारत में मेजोरिटी। तो ये क्यों सॉल्व किए? पहले पहले तो पाकिस्तान को सॉल्व करना था, या मेजोरिटी मानने वाले थे। किधर से जाओगे आप? तो बस देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया है, आर्गुमेंट लॉजिकली करिए, क्यों सॉल्व करने में ये प्रॉब्लम पहले। तो हर एक छोटी छोटी चीज, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई ब्लाइंड नहीं होगा ट्रैकोमा से। ट्रैकोमा से होने वाले ब्लाइंडनेस की संख्या देखो। पढ़ना है नहीं, जानना है नहीं, पॉलिटिशियन की बातें सुननी है, तो होना क्या है? जाहिल बने रहना, क्योंकि पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि आप जाहिल बने रहें। 1.9 million people worldwide, 1.4% of all blindness। जितनी ब्लाइंडनेस होती है उसकी 1.4% ब्लाइंडनेस है, वो किस चीज से कॉज होती है? ट्रैकोमा से। अब ये 1.9% ब्लाइंडनेस इंडिया में किसी को अफेक्ट करेगा ही नहीं, फ्यूचर में कभी नहीं करेगा। क्यों? इसका जो वायरस था ना, वायरस दैट कॉज्ड इट, उसका हम लोगों ने खात्मा कर दिया कि वो हाँ अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है वायरस एक से दूसरे में जाएगा ना, तो वो है ही नहीं यहाँ के लोगों में। इसमें कितना काम करना पड़ेगा लोगों को? किसको पता है इस बारे में? यहाँ पर बैठे हो पूरे क्लास में बताइएगा, जितने लोग बैठे हैं, ऑल द पीपल, एनीबॉडी न्यू अबाउट सच बिग अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया? नो। व्हाई वुड यू? You're happy doing Ram Mandir and Allah and Bhagwan and this. Be happy. Stupidity का कोई लिमिट नहीं होती भाई साहब। These are the things that again मैं फिर पूछ रहा हूँ, ठीक है? I'm not trying to just here do anything else other than ask you to be logical and understand what actually happened. क्यों बाउंड्री क्यों मायने रख रही है? ऊपर वाले का डिसीजन बाउंड्री देख के होता है। I've always said this to you guys. The decision ऊपर वाला makes, why does the boundary play a role? यहाँ के लोगों के साथ ऐसा होगा। Don't forget, Africa has a very low life expectancy, lifespan on average. Japan has a high, life expectancy. क्यों वजह है किसी एरिया के लोगों के साथ ऐसा क्या है? Because it is everything done by humans. Keep fighting for that thing, which cannot be proven or disproven. Stupidity lies somewhere else.
अभी वापस आ जाते हैं बिकॉज अभी ओके हम लोग अच्छा क्वालिटी आवाज की क्वालिटी अच्छी तो आ नहीं रही होगी दोस्तों तो एक और के खत्म करता हूँ जो हमारे आई एम नथिंग सॉरी जाफरी ने पूछा था ब्लास्फेमी की बात करी थी तो व्हाट इज ब्लास्फेमी तो ब्लास्फेमी ब्लास्फेमी से भी पहले एक चीज चलते हैं about 1,000 years ago 500 years ago good and evil which you still believe in good and evil there are two forces in the world good forces and evil so everything was black and white in the past there were people on your side they were good and people were against you they were evil and on the side means on the side of the religion, whatever. Suppose in India they believed in Hinduism, okay? And somewhere else they believed in Christianity, somebody else they believed in Islam. So every area had their own religion in general. Anybody who did not agree with that group was considered evil. Who was considered evil. Now, this definition of evil was strange. If somebody caught leprosy, kushto, whether in India or anywhere, people said, you did something wrong, God is punishing you. God is punishing you. Leprosy was a punishment from God. Today, leprosy can be cured. If somebody has this problem and goes to the doctor in time, then it can be cured. So it is no longer considered a punishment. However, still there are people who are not educated and believe in these things. They will again say, पिछले जन्मों का पाप है कि तुम्हें कुछ हुआ. Some people will say in a different way. The point is, हर जगह सिर्फ good and evil करना कुछ नहीं था. Solution नहीं ढूंढना था उनको. जो solution ढूंढने गए, उनके पास कम से कम ये तो पहले मानना होगा ना मन में कि ऊपर वाले का दिया हुआ नहीं है. ऊपर वाले दे देगा तो हम कैसे रोक सकते उसको तो ये है एकदम अपने काम को लेजी लोग का एक्सप्लेनेशन है हर जगह किसको घुसा दो गॉड ताकि कुछ करना ना पड़े अगर किसी को बीमारी हुई है सोल्यूशन ढूंढने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा तब तो सोल्यूशन ढूंढोगे नहीं उसका ऊपर वाले का मान करके बैठ जाओ ठीक करना ही नहीं कुछ 2 से 3 बार जाते थे लोग किसके पास पहले डॉक्टर्स नहीं होते थे फिर से बता दो ठीक है हकीम और हकीम कौन होता था और वैद्य कौन होता था धर्मों का ज्ञान रखने वाला फिर से ठीक है अगर उसने 2 बार में 3 बार में ठीक नहीं किया तो कहता था ऊपर वाले की मर्जी है पढ़ने का हिस्ट्री तब पता चलेगा ऐसे ही क्यों होता था बीमारी कोई एम्स नहीं होता था आपके पास कि जाइए वहां भर्ती हो जाइए जाके ठीक हो जाइए वहां तो फॉर सिंपल डिजीजेस ओके लाइक मलेरिया there was no cure. Malaria killed hundreds and thousands of people, millions of people actually. What was the people's opinion about people dying from malaria? Oh, it is God's will. And God decided, bhai, ab malaria se hum nahi marenge, right? God decided now. Yeah, if you have malaria today, then you will go to a doctor and the doctor will give you the treatment. Coming to the point of blasphemy. Blasphemy is whatever आपको माइंड वॉश किया गया वो हटाइए और मेरी बात सुनिए और बताइएगा मैं कहां गलत बोल रहा हूं There were Jews about 2,000 years ago. What you call Israel today? Jerusalem. Jerusalem city is a very old city. Okay, there were Jews living in Jerusalem. Only Jews living in Jerusalem. One Jew decided to say, "I am God." Who was that Jew? His name was Jesus. Jesus of Nazareth. Okay? Jesus said, I am God. Jews को लगे कि मेरे धर्म के खिलाफ बोल दिया क्योंकि उनके धर्म में गॉड कौन है याहवे और कोई गॉड नहीं हो सकता they believe in one God याहवे उनको लगता है ये कैसे बोल सकता है आई एम गॉड उसने अपने आप को गॉड साबित करने की कोशिश की दिस मैन तो उसको सूली पे टांग दिया किसने टांगा यहूदियों ने Jews
एंड किसको टांगा? एक जू को टांगा। क्यों? क्योंकि जू ने कहा आई एम गॉड। ठीक, ओके, व्हाटएवर हैपेंड, कुछ लोग मानते हैं दैट ही वाज रिसरेक्टेड और ही वाज ब्रॉट बैक टू लाइफ, उसके बाद भगवान ने उसको ऊपर उठा लिया। और उसको मानने वाले आज क्या कहलाते हैं दोस्तों? क्रिश्चियंस। तो एवरी क्रिश्चियन हु बिलीव्स कि जीसस वाज गॉड और सन ऑफ गॉड, वो फटाक से जैसे अपनी धारणा मन में खाली रखे कि हम जीसस को मानने वाले क्रिश्चियन हैं, तो क्या कर रहे हैं? ब्लास्फेमी कर रहे हैं। किसके खिलाफ? किसके खिलाफ ब्लास्फेमी कर रहा है? ज्यूस के खिलाफ। क्योंकि ज्यूस की क्या धारणा है? गॉड इज याहवेह और जीसस वाज जस्ट मैन। जीसस वाज जस्ट ए हु सेड? ज्यूस, क्योंकि वो भी एक जूस था, पैदा हुआ था। लेकिन कुछ मानते हैं that he was born to a virgin woman and he was not, he didn't die, he was taken back by God। तो जब ये धारणा रखने वाले अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं, उनका क्या है? उनका क्रिश्चियन होना क्या है? ब्लास्फेमी। उनका क्रिश्चियन होना क्या है? ब्लास्फेमी। क्यों? जूस। अब आ गया ये 600 years forward, 1400 years ago, a man called Muhammad from Saudi Arabia, who is called Paigambar Muhammad, right? Muslim people, okay? He said, ये जो जीसस है ना, he is not son of God, he is just a prophet। डाउनग्रेड कर दिया उसको। क्या कर दिया? किसी पूरे कम्युनिटी के गॉड को डाउनग्रेड कर दिया। क्या कहा? ही इज नॉट गॉड। जैसे ही आप इस आदमी के और इस आदमी के बारे में यकीन करते हैं, अपने आप को क्या बोलते हैं? मुसलमान। वैसे ही आप तुरंत क्या बन गए? ब्लास्फेमी करने वाले। किस रिलीजन के? क्रिश्चियनिटी। तो आप सब क्या है? Please back to pavilion. क्रिश्चियनिटी। नहीं डेटा सही है उसके फॉर्मेट। आप सब ब्लास्फेमी कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी के खिलाफ। आपका होना ही ब्लास्फेमी है। आपकी सोच, आपका धर्म क्या है? ब्लास्फेमी। आप मुंह से कुछ मत बोलो, आप ब्लास्फेमी कर रहे हो। हाँ कि ना? क्योंकि आप क्या कह रहे हो? क्या रखते हो मान्यता? क्या रखते हो मान्यता? कि जीसस इज नॉट गॉड, ही इज ए प्रॉफिट। किसी के गॉड को प्रॉफिट बोलना उसके लिए बेइज्जती है कि नहीं? उसके लिए बेइज्जती है कि नहीं? उस आदमी के लिए बेइज्जती है कि नहीं? उसके कम्युनिटी के लिए बेइज्जती है कि नहीं? हम आपके अल्लाह को अगर कहें वो मैसेंजर है, प्रॉफिट है, तो आपको कैसा लगेगा? इंसल्ट लगेगा। तो आप वही काम करते हैं किसके लिए? क्रिश्चियंस के लिए। Christian said he is a God, he is a son of God, not अरे भैया, मतलब वो मानते हैं ट्रिनिटी है, एक है वो सब, फादर गॉड एंड होली होली, क्या कहते हैं स्पिरिट, वो एक मानते हैं। वो मानते हैं, उनकी बात करिए, उनके लॉजिक में करिए कि वो ऐसे है नहीं, वो बात नहीं। वो मानते हैं ना, लॉजिक में बात कर कोई खुदा थोड़ी साबित होने वाला है। किसी का खुदा साबित होने वाला लॉजिक से? लॉजिक से खुदा साबित होता है दोस्तों कि दुनिया में भगवान और ज्ञान भगवान को मानने वाले लोग कभी ऐसे आगे रहते हैं दूसरे। लॉजिक से ना आप साबित कर सकते हैं ना साबित कर सकते। बात नहीं समझ रही है ना? हम साबित कर सकते गॉड नहीं है, ना आप साबित कर सकते गॉड है। बात समझ में आ रही है? ये मानने की चीज है। तो वो मानते हैं ना, कुछ वो मानते हैं ना कि जीसस क्या थे? सन ऑफ गॉड थे, और आप उनको प्रॉफिट बोलते हैं। तो आप उनके नजर में क्या है? एक ब्लास्फेमस पर्सन है कि नहीं है? ब्लास्फेमी करने वाले के साथ क्या किया जाना चाहिए? तो सारे जूस मिल करके सारे क्रिश्चियंस को मार दो, और सारे क्रिश्चियंस मिल करके सारे इस्लाम को मानने वाले को मार दें। यही होना चाहिए, क्योंकि ब्लास्फेमी की सजा मौत होनी चाहिए ना। फिर मैं मुस्कुरा रही हूँ क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि लॉजिक पर सॉलिड लॉजिक मार दिया है। सारे जूस मिलके किसको मार दें? क्रिश्चियंस को मार दें। सारे क्रिश्चियन मिलकर मार दें मुसलमानों को, क्योंकि वो क्या कहते हैं भैया कि वो तो प्रॉफिट नहीं है, वो तो सिर्फ प्रॉफिट है, वो तो गॉड है ही नहीं, सन ऑफ गॉड है ही नहीं वो। तो आप समझिए, आपका एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के खिलाफ ब्लास्फेमी ही है। कोई दो रिलीजन एक दूसरे को अग्री नहीं करते। ये मोनोथिस्टिक रिलीजन जो है वो एक छिपराहट नहीं चल रहा है इनमें। मेरा वाला मानो तो चलेगा, नहीं मानोगे तो खत्म। अब अलग बात है कि आप ऐसे टाइम पे हो जहां पे ये सब चीज नहीं कर सकते। आपको पता है, क्या नाम है, कौन से क्या हुआ था? होली क्रूसेड। क्रूसेड जेरूसलम को आजाद कराने के लिए क्रूसेड करा ना क्रिश्चियंस ने, कि भाई हमें वापस लेना है, ये जेरूसलम को अपने हाथ में लेना है। तो ये धार्मिक लड़ाइयां बहुत चल रही है। धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मारे काटते हैं। सीधी बात है, आपका कहना है कि मेरा वाला खुदा खुदा है, बाकी तुम्हारा वाला नहीं है।
जैसे आप ये बोलते, जैसे क्रिश्चियन जूस बोलते हैं कि तो खुदा खुदा नहीं है क्रिश्चियन को, वो तो खाली एक आदमी था। ये मुस्लिम बोलते हैं क्रिश्चियन को कि वो प्रॉफिट था। अब ये बोलेंगे कि हम आपके खुदा को नहीं मानते, क्रिश्चियन नहीं मानते आपके खुदा को, राइट ना, वो उनको प्रॉफिट मानते हैं, प्रॉफिट जिनको आप प्रॉफिट मानते हैं वो उनको नहीं मानते प्रॉफिट, राइट। तो क्या है, एक दूसरे के खिलाफ क्या है, ब्लास्फेमी है कि नहीं है? मुंह से कुछ बोलना ही ब्लास्फेमी होता है, और ये धारणाएं ब्लास्फेमी नहीं होती। तो किस बात का ब्लास्फेमी, किस बात का रूल, किस बात की ब्लास्फेमी की सजा, ब्लास्फेमी किस बात की, किस बात की सजा ब्लास्फेमी के लिए? और मैंने बताया जाफरी को कि मैंने गॉड के बारे में कोई धारणा रखी, कोई बात कही, तो गॉड ने पनिश करेगा, तुमको क्यों कराएगा, तुम क्यों पनिश करेगा? गॉड ने क्षमता नहीं मेरे को पनिश करने की, फिर तुम्हें आना पड़ता है बीच में। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ लोगों का कहना है सर कि नहीं होना चाहिए सर। मैंने कहा बहुत समझदारी वाली बात है, लेकिन कितने लोग मान रहे हैं? अभी यहाँ पर आती है बात, आप लोग कहिएगा सर बायस है, आपको पहले ही मैं बोल चुका मैं गॉड में यकीन नहीं करता, ठीक है, लेकिन याद रखिए जब बात आती है वर्ल्ड व्यू की, ठीक है, तो एक बात बताइए, अगर वर्ल्ड व्यू चले, क्या कोइंसिडेंस है, इसको देखिए क्या कोइंसिडेंस है। आप जिस मिट्टी में पले बड़े हैं उस मिट्टी की जो शुरुआत की बात है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि आपको कहा जाता है कि आप कुछ भी मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन बोलता है ये, कौन बोलता है ये? कुछ भी मानते फर्क नहीं पड़ता है, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। इससे ज्यादा दोस्तियारी करके चलने वाला क्या हो सकता है कि आप कुछ भी माने फर्क नहीं पड़ता? हालांकि देखा जाए, फिर से मैं आपको बताता हूँ, आपने ये एनालॉजी नहीं सुनी होगी पहले, हिंदुओं में भगवान के मंदिर को तोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? राक्षस। कौन भगवान के मंदिर को कौन तोड़ता था दोस्तों? हिंदू के भगवान को जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं, कौन हिंदू भगवान को तोड़ने वाला था? कौन था? तो उस हिसाब से तो ये एटीट्यूड होना चाहिए लोगों का मुसलमानों के प्रति। लेकिन यहाँ क्या सोच क्या है कि नहीं, सारे एक जगह जाते हैं, चाहे आप जो भी धारणा रखते हो। तो अगर वर्ल्ड पीस चाहिए होगी तो इस धारणा से आएगी कि सारे एक साथ चले, जिधर जाना है सब चले एक ही साथ चल गए, या इस धारणा से आएगी कि मेरा वाला मानो तो सही है नहीं तो गलत है? किस धारणा से आएगी दुनिया में पीस? मत, हम तो पहले ही बता रहे, लॉजिक करोगे किसी का गौर नहीं करने वाला, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे क्रिश्चियन का, किसी का गौर करेगा नहीं सही जगह पर। अगर आप लॉजिक करने आओगे तो गॉड सिर्फ बिलीफ में होते हैं, लॉजिक में नहीं। जो लॉजिक करने आए उसकी पूंजी बच जाएगी। अगर आप में किसी को अभय राम देना है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है धार्मिक लोगों में, वो बहस करने आएंगे और बहस करते करते आप रियलिटी बोलने लग जाओगे तो आपको तलवार चलाने लग जाएंगे, आपको उंगली उठाने लग जाएंगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। जब लॉजिक करने आओगे तो लॉजिक में तो हर बात बोली जाएगी ना जो लॉजिक से साबित होने वाली है, तो तुम्हें इंसल्ट नहीं फील होगा। तो मानो कि ये तुम्हारे दिल की चीज है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भावनाओं में है ये, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कैसे चलेगा, ये वर्ल्ड व्यू कैसे चलेगा कि मेरा सही है तेरा सही नहीं है? सर ये सब तो सारे पॉलिटिशियन ही कर रहे हैं। एकदम चुप हो जाइए, पॉलिटिशियन कर रहे हैं। घर में पॉलिटिशियन होता है जो घर में बताया जाता है आपका कौन सही है दूसरा का खराब। एक सेकंड, आज हम कोई कोई छोटा सा भी बात नहीं सुनने वाले। घर में पॉलिटिशियन भी बताता है तुमको कि तुम्हारा कौन सही है दूसरा का खराब है। घर में भी तो कोई नहीं एक सेकंड सर, एकदम सच्चाई यही है, सारे हिंदुओं और मुसलमानों को हमारे घर में ये कर दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, तरफ कर दिया जाता है, ठीक है। खास करके आप बताए ना, क्या हमारे भगवान को भगवान मान सकते हैं? सर मेरा क्या, हम मान के अल्लाह को अल्लाह मान लेंगे, चलिए। सर मेरा क्या खत्म बात, सुनिए। खत्म। हम आपके पापा को चचा बोलने के क्या है, आपके पापा को चचा बोलिए, बात खत्म है। यस सर। मतलब मेरा एग्जाम्पल था, वो एग्जाम्पल था। देखिए मैं फिर से बोलता हूँ, एक छितराहा पनई नहीं चलता है, ठीक है, एक छितराहा पनई कोई भी करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कराएगा और कुछ नहीं कराएगा। इसलिए बेहतर यह है कि इस वर्ल्ड व्यू को, जो कि धर्म की वजह से नहीं आता, मैं नहीं मानता ये धर्म की वजह से है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये यहाँ पर जैसे इंडिया की जमीन पे एक चारवाक नाम के फिलोसफर हुए, उन्होंने कहा भगवान नहीं है मेरे जैसे, ठीक है। तो चारवाक जैसे इंसान को तो मिट्टी में मिल जाना चाहिए था ना, लेकिन उनको पढ़ाया जाता आज भी। सर सर छोड़िए ना, जिसको जो करना वो करेगा, चेंज कर देना टॉपिक को।
थैंक यू। और आप किसी के मैसेज पर रिस्पॉन्ड ना किया करें, ठीक है। आप एकदम रिलैक्स करें, जो मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने का हक दीजिए, ठीक है। और मैं जो बोल रहा हूँ बहुत इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सही तरीके से बोल रहा हूँ। ब्लास्फेमी सब कर रहे हैं। फिर से मैं कहूंगा कि किसी का सोच ही इसका ब्लास्फेमी दूसरे के खिलाफ। आपका ये मानना कि जीसस गॉड है, जीव के खिलाफ ब्लास्फेमी है। आपका मानना कि जीसस एक प्रॉफिट है, क्रिश्चियन के खिलाफ ब्लास्फेमी है। तो आपके सोच में जब ब्लास्फेमी होती है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सीधी सीधे रास्ते सब अपनाइए। इसको कहते हैं साथ मिलकर चलना, बोलना नहीं, इसमें एक्चुअली बिलीव करना। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप सोचो कि क्या करोगे, लेकिन रियलिटी यही है दैट यू हैव टू वॉक टुगेदर। आपको एक साथ चलना होगा, मिलकर चलना होगा। और किसी को ये नहीं बोलने का हक है कि हाँ फलाना का रिलीजन सही नहीं है ना। एक को नहीं, एक को बोलने का हक नहीं, किसी को बोलने का हक नहीं है कि फलाने का रिलीजन गलत है। किसी का रिलीजन गलत और सही नहीं होता है, उसके वैल्यूज सही और गलत होते हैं, हाँ कि ना। वैल्यूज क्या है आपके रिलीजन में? आपके रिलीजन में गलत वैल्यूज है, उसको आप चेंज करोगे? अगर आप किसी भी रिलीजन की पुरानी, आज से 2 साल, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले की प्रैक्टिस को देखेंगे तो इतनी मिसोगिनी दिखेगी हर एक रिलीजन में। लेकिन वो चीजें धीरे धीरे बदली ना, तो बदलना ही होता है समय के साथ। और सब बदले हुए भी हैं, माने चाहे ना माने। मानने में इंसल्ट होता है, सेल्फ स्टीम हर्ट होता है, प्राइड हर्ट होता है, लेकिन सच्चाई है कि बदले हैं सब। अगर आपको पुरानी धारणाएं जो है, क्लासिकल जो रिलीजन है, जो शुरुआत में चली है, उस हिसाब से जीवन जीने के लिए कहा जाएगा, तो आपकी नानी मरने लगेगी, ठीक है। फिर क्यों, जो आप खुद मिलकर इंडियंस का रिलीजन जीते हो, तो ये क्यों लेते हो? शॉविनिज्म के क्यों शिकार हो? शॉविनिज्म मतलब होता है अपने आप को बेहतर मानने की तो मतलब की प्रवृत्ति, सिर्फ इसलिए कि मेरा है तो बेहतर है। इसको कहते हैं शॉविनिज्म। चाहे वो कोई घर हो आपका, तो आपका घर बेहतर है। आपका कपड़ा है तो बेहतर है। आपका बच्चा है तो बेहतर है। फिर शॉविनिज्म एक फीलिंग होती है, इंसान की वीकनेस होती है। शॉविनिज्म इतना भारी क्यों पड़ जाता है आप पे कि आप एकदम अपना लॉजिक खो देते हैं कि मेरा है तो बेहतर है वाला एटीट्यूड क्यों है? क्यों नहीं कह सकते कि सब जैसे एक जैसे ही है भाई? हाँ, वैल्यूज को आप इवेलुएट करिए कि किसकी वैल्यूज क्या सिखा रही है। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ वैल्यूज इस रिलीजन के लीजिए, कुछ वैल्यूज उस रिलीजन के लीजिए और एक बेहतर इंसान बनिए। क्या दिक्कत है इसमें? और आप शॉविनिज्म इज जो भी खुद मानना है मानिए, जिस नाम से मानना है मानिए, लेकिन ये क्या जबरदस्ती वाली बात होगी कि किसी का रिलीजन गलत है? अब फिर से बोलता हूँ, ठीक है, ये मेरी क्रिटिक नहीं है। सारे एक्सपर्ट, चाहे वो मानने वाले हो चाहे ना मानने वाले हो, मैं फिर से बोलता हूँ, जिनके पास लॉजिक करने की क्षमता है वो इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि आगे बढ़ने का रास्ता लड़ाई नहीं, मिलकर चलना है। और मिलकर चलने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सामने वाले को सही। आप ये नहीं बोल के साथ चलिएगा कि तुम वोट पाना लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे, ये नहीं बोल सकते आप। तो आप सब अपने अंदर झांके, क्या आपके अंदर दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है? अगर है तो आप सही हैं। और अगर आपके अंदर दूसरे के लिए द्वेष है, घृणा है, और वो भी किस वजह से, उसकी पहचान कैसे, उसके वैल्यूज की वजह से है, तो मैं मानता हूं। मैं अगर कहूं ऐसी बात कि किसी का पैसा लेके वापस नहीं करना चाहिए, अगर ऐसी सोच है मेरी, तो आप मुझसे नफरत करते हैं, मैं समझता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मेरी ऐसी नहीं है तो फिर आप मुझसे क्यों नफरत करेंगे, सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम फलाना है? कि ये कौन सी सोच है? मेरी वैल्यूज से नफरत करिए ना, मेरी वैल्यूज को इवेलुएट करिए, उस पर अपनी राय रखिए, तवज्जो रखिए कि हाँ ये गलत वैल्यूज है आपकी। जो भी क्रिटिकल, इसको कहते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, अगर आप करेंगे किसी भी रिलीजन की, तो आप में, आपको हर एक रिलीजन में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां दिखेंगी। आप अच्छाइयों को रखें, बुराइयों को सरका दें, अगर आप नहीं रख सकते इस चीज के बगैर। हालांकि मेरा तो कहना सीधा ही है कि अगर रिलीजन को किसी दौर ने बनाया होता तो उसमें एक भी खराबी हो सकती थी। सीधा सवाल, एक भी खराबी हो सकती थी? रिलीजन को अगर गॉड ने बनाया होता तो क्या एक खराबी कोई निकाल सकता है जिसके लिए आपको मुंह छुपाना पड़ेगा? गॉड की क्रिएशन ये इम्परफेक्ट होती क्या अगर गॉड क्रिएट किया होता आपके रिलीजन को तो? लेकिन फिर भी बोलना यही है जाहिलों की तरह। तो एक लड़ाई होती है वर्चस्व की लड़ाई। वर्चस्व की लड़ाई लड़ने में सही गलत नहीं देखा जाता है। अगर वो लड़ रहे हैं, बी माई बेस्ट,
ठीक है। लेकिन अगर आप सही में से इस वजह इस चीज को मानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा गॉड है, गॉड ने बनाया है, तो आप उसको एनालाइज करिए लॉजिकली और सोचिए खराबियां क्यों हैं, गलतियां क्यों हैं। और कोई कहेगा कि गलतियां नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को बहलाने वाली बात है कि मेरे रिलीजन में कोई गलती नहीं है, ठीक है। सिर्फ अपने दिल को बहलाने की बात है। कब तक इस तरह के गलतफहमी में जीते रहेंगे आप लोग? इसलिए आतंकवादी ना बने, अग्रेसिव ना हो रिलीजन के नाम पे, ठीक है। काम रहे, माइंड योर ओन लाइफ, माइंड योर ओन बिजनेस वाला एटीट्यूड रखें और आगे बढ़े लाइफ में। नहीं तो किसी और की सेना के पैदल सिपाही बन के अपनी जान गंवाइएगा, जीत और हार उसकी होगी, आपका नाम तक नहीं आएगा कि आप मरे थे उसमें। न जीतने पे आपका नाम आएगा उसके, न मरने पे होगा। मरने पे आप दोनों हार में मरने वाले हैं, याद रखिएगा, पैदल सिपाही मरता है, ठीक है। आपको इतनी ज्यादा जीत प्यारी लड़िए जाता, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं इस बात के लिए। हम जाहिल नहीं है कि हम इन सब चक्करों में अपनी जान गंवाने के लिए कहेंगे किसी को, अपने चाहने वाले लोगों को, उनको जिनको हम वैल्यू करते हैं, जिनको हम चाहते हैं, चाहे उनको मेरी बात मीठी लगे चाहे तीखी लगे। और रिलीजियस पे हर बात का चिट्ठा नहीं फाड़ने का, घर में पॉलिटिशियन घुस के नहीं बताते कौन रिलीजन सही है कौन गलत है। झूठ कब तक बोलते रहेंगे हम लोग? जब भी बात होगी, देखना, जब भी कोई बात करेगा मिल के चलने की, तो चार लोग चिल्लाते हैं। कुछ लोग कहते हैं सेक्युलरिज्म बड़ी खराब चीज है, ठीक है। और ये कहने वाले मुझे दोनों साइड से लोग मिलते हैं इंडिया में ना, सब बचा के रखिए इन लोगों ने, ठीक है। एक आम आदमी जैसे मेरे से लोगों के लिए तो ब्रीथ करने का जगह नहीं छोड़ रखा है। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे वक्तव्य सुनने को मिलेंगे, आदमी को लगेगा कहीं के लिए बोल रहा है यार, मुंह बंद कर दे इसके, मुंह में जुलाब हो जाए इसके, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। या वही क्या इसलिए बोल रहा है, ऐसा बोलता है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आपका क्या है इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, आगे बढ़ने में, ठीक है। ऐसी बातों पे उलझ के हम लोग कहाँ जाएंगे? पैदल सिपाही बनना है किसी के ये के? क्योंकि अच्छाई गौर समझेगा, अगर कॉज होता ना वर्थ इट, एक होता है कॉज वर्थ इट, जैसे भगत सिंह ने जान गंवाई, उनकी रिस्पेक्ट है क्योंकि वो कॉज वर्थ इट था। कोई आपका शोषण किए जा रहा है, शोषण किए जा रहा है, यहाँ से सारी संपत्ति ले जाकर के कमी के आपके घर के बच्चे खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, तो आप लड़ेंगे उस चीज के लिए। लेकिन इस चीज के लिए लड़ेंगे कि किसका गॉड सही है, किसका गॉड ज्यादा अच्छा है, इस चीज के लिए इज इट वर्थ इट? लॉजिकली सोच के देखो। गॉडसेप एक आइडिया है, अलग अलग नाम तुमने दिए, अलग अलग ये भाषाएं बोलते हैं, इसलिए अलग बड़े बड़े अलग अलग वैल्यूज लेके आए। अब उनको क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। इट इज नॉट द 7th सेंचुरी अरेबिया, इट इज नॉट 2000 ईयर्स अगो इंडिया, जहां पे ब्राह्मणिज्म चलेगा, ठीक है। जहां पर कहेंगे कि हाँ फलाने 4 जात नीचे रहेंगे, 4 जात ऊपर रहेंगे, बीच में मेहनत करने वाले रहेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, जहां पर कोई ये सब चीज का जगह नहीं है, जहां पे मैंने बताया ट्रैकोमा का इलाज करके अब भारतीयों को अंधा होने से रोक दिया है। ट्रैकोमा से, ये मत समझना कि भारत में कोई अंधा नहीं होगा, ट्रैकोमा से अंधा नहीं होगा, ठीक है। 1.4% जो टोटल इंडिया में देखोगे तो हो सकता है उसका ज्यादा था ये नंबर्स। सॉरी सुनीता, Sorry to disturb you, sir. May I interrupt in between? yes you have already interrupted and it's all right. Yes. Sir, I think religions people do this thing like they listen the lectures and they read in the books, but still they apply all the things whatever the culture goes. मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी की बात सुनूं ज्यादा इस मामले पे, क्योंकि स्तर के शब्द वैसे नहीं गिरेंगे जैसे मैंने बोला है नाप तोल के। तो मैं चाहूंगा कि आप या तो मुझसे अग्री करें या तो डिसएग्री करें, बस 2 जगह अपने आप को रखें और इससे ज्यादा ना रखें, ठीक है। बीच वाला रास्ता मत लेके, आई एग्री सर्टेनली अ लिटिल बिट एंड डिसएग्री, अ लिटिल बिट वाला स्थिति मत लाइए।
अगर है तो बोलिए मत, यहाँ पर मैं जगह नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी राय रखी है यहाँ पे, टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इस वजह से, ठीक है ना। और मेरे पास रीजन ऐसी बात। That was the right because I also realized the same way, but still people are not follow that. All the men don't not follow it. क्यों कि कौन फॉलो नहीं कर रहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप लोगों को मेरे से दो बातें कहनी है कि आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग और आई डिसएग्री विद व्हाट यू सेइंग, बीच का रास्ता नहीं है। और ना ही मैं आपको कोई कमेंट करने के लिए कहूंगा इसमें, सॉरी, उसकी वजह है मेरे पास ऐसा ना करने देने की, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा शब्द गलती से अनइंटेंशनली, क्योंकि आप सब इंग्लिश में बोलोगे, कुछ का कुछ इधर उधर होगा, हम नहीं चाहते किसी के मुंह से कुछ निकले, ठीक है। बहुत टची टॉपिक, मैं बहुत रिस्क लेके बोलता हूँ ये सब बातें, बहुत रिस्क लेके बोलता हूँ, ठीक है। नहीं तो अपने के लोगों में फटती है मुंह पे सच सच लाने की, अकेले में जाके बात करेंगे, सामने नहीं करेंगे बहुत लोग, ठीक है। बातों की फटती भाई है, नहीं पाएंगे मुंह में जो है, मन में जो है उनके, वो पीछे में बोलेंगे, अकेले में नहीं बोल पाएंगे लोग। फिर क्या बोलता है, सब लोगों को साथ चलना है और इसी में रास्ता है, इसी में भलाई है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। किसी को गलत बोलना इज अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। एक समय था कि हिंदुओं ने कहा कि फलाना अगर वेद का पाठ सुन ले तो उसके कान में शीशा डालो, ठीक। एक सर्टेन कम्युनिटी ने ये बात कही और लोगों ने मान लिया कि हाँ इनको हक नहीं है, चल वो निकल लिए ना बोलते, वो बोल के निकले ना, आज नहीं बोल सकते, आज बोलेंगे तो उनकी कुटाई हो जाएगी, ठीक है, कुटाई हो जाएगी, क्योंकि ये अनएक्सेप्टेबल है हमारे जो आज के वैल्यू सिस्टम उसके हिसाब से। वैसे ही जब आप बोलोगे ये बात कि किसी का रिलीजन गलत है तो आज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, एक समय पर आप बोल के निकल होगा, नहीं बोल के जा सकते आप किसी का रिलीजन गलत है। रिलीजन कोई फिजिकल चीज नहीं है तो ये गलत होगा, ये एक मान्यता है, एक मान्यता है, जैसे कोई कोई चीज में आता रखता है, ठीक है। बस इतनी सी सिंपल सी बात है, अगर ये छोटी सी बात नहीं समझ में आती किसी को तो उसके मानसिक लेवल का मुझे अंदाजा नहीं है क्या है। तो फिर मैं बोलता हूँ, अगर आप वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को अलग मान के तो अलग बात है, ठीक है, आप लड़िए, आप हारेंगे जीतेंगे जो होगा आपका होगा। लेकिन अगर आप रियली जेन्युइनली ऐसा सोचते हैं कि रिलीजन में कोई बेहतर कोई बेहतर हो सकता है तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि अब जब एनालाइज करेंगे तो आप वैल्यूज देखेंगे तो हर एक रिलीजन में कुछ अच्छे वैल्यूज और कुछ एकदम अनएक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, हर एक रिलीजन में अनएक्सेप्टेबल इन 21st सेंचुरी। कुछ ऐसी बातें हर एक रिलीजन में जिसको कोई आज प्रैक्टिस नहीं करेगा, ना हिंदू, ना क्रिश्चियंस, ना मुस्लिम्स, कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीजें हर एक रिलीजन में जो आज प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो, ठीक है, 21st सेंचुरी में नहीं करेंगे वो प्रैक्टिस। तो फिर किस बात के लिए परफेक्शन की बात करें हम, किस बात के लिए लड़े हम, अपने जियो उस तरीके से उसके बाद बात करो। तो सीधी सी बात है, अगर दिमाग हाथ में है, सही जगह पे है तो लॉजिकली सोचोगे, ठीक है। और अगर झूठ मूठ में अपने आप को बेहतर नहीं फील कराना है तो भाई आप तो अपने भाई को भी बुरा बोल सकते हो, बुरा बेहतर फील करने के लिए, बाकी दूसरी दुनिया होती है। कुछ लोग तो अपने भाई को मार गालियां देके कहते हैं कि हम बेहतर हैं, अपनी माँ को गाली देकर अपने आप को बेहतर समझ रहे होते हैं, तो उनके बारे में क्या ही बात, ऐसे लोगों के बारे में क्या ही बात करना जो लड़ने के लिए इतने हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। लड़का लोगों की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है सेंसिबल लोगों की। वो लोग क्यों फंसते हैं, वो लोग क्यों नहीं होते हैं इन सब बातों में, ठीक है। So in the conversation, you speak a word, some is a Midas. So could you explain that word? नहीं, बात है अभी इंडिया में ब्लास्फेमी वर्ड को बहुत यूज किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। अभी पाकिस्तान में एक 4 बच्चों की मां को डेथ की सजा दी गई है, किस चीज के लिए, ब्लास्फेमी के लिए। ऊपर बोलने की क्षमता नहीं है कि आप नीचे उस औरत को पनिश कर दे, वहां से कोई भेज दे ऐसा कि उसका 4 बच्चे मर जाए कोई एक्सीडेंट में, ऐसा नहीं कर रहा वो, ठीक है। या वो रात में सोए सुबह ना उठे, सबसे अच्छा तो यह होगा बिना किसी एक्सीडेंट के जिसमें आदमी का कोई रोल ना आए। एक 4 बच्चों की मां को डेथ की पनिशमेंट दी गई है ब्लास्फेमी के लिए। अगर आपके अंदर इंसानियत है तो क्या आप मानेंगे कि कोई खुदा को गलत बोल देना ये इतना बड़ा अपराध है कि ये 4 बच्चों की मां को पनिश किया जाए, वो 4 बच्चे अनाथ होकर जिए बिना मां के, उसने किसी का मर्डर कर दिया।
जाहिर समाज शुभ है। ब्लास्फेमी, माय फुट। ब्लास्फेमी कोई चीज नहीं होती, आपका होना ब्लास्फेमी है दूसरे के लिए, आपका एग्जिस्टेंस ब्लास्फेमी है दूसरे के लिए। अपने एग्जिस्टेंस को मिटा दीजिए दूसरे की ब्लास्फेमी के नाम पे, अगर आप इतना यकीन करते ब्लास्फेमी में तो नहीं कर सकते आप। इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ जंगल राज है, जहां शेर जो चाहे वो करेगा। एक 4 बच्चों की मां को मृत्यु की सजा क्यों दी जाएगी? उसने गॉड को गलत बोला तो नहीं मानी, गलत मानी, कुछ भी बोली, गॉड करे पनिशमेंट, दे पनिशमेंट, तुम कौन हो ये बोलने के लिए किस चीज के लिए तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाती है? एक एक बहुत अच्छा सा शेर है, उसकी पहली लाइन मैं भूल रहा हूं। शेर बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा है, कहा है किसी ने कि बच बच के चलना इस दौरे जहां से या कुछ भी था, खुद बोल के कहते हैं खुदा बोल रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे नहीं लेना है कि हमने किया गलत सही, डाल दो ऊपर वाले पे, अरे ऊपर वाला पनिश करेगा। इमेजिन दिस, ब्लास्फेमी पे अगर मौत की सजा दी जाने लगे दोस्तों, तो जितने लोग हैं ना सब मरेंगे। सबका होना दूसरे के लिए ब्लास्फेमी है। अगर शुरुआत है जूस की, आप जो धारणाएं रखें, फिर से मैं बोलता हूं लॉजिक करने आओगे, लॉजिक में कोई रिलीजन नहीं ठहरता दोस्तों। ठीक है, इसलिए जाने दो, कोई इतना क्लियर रखो, दिमाग लॉजिक इतना क्लियर रखो कि समझ में आएगा कि लॉजिक पे नहीं ठहरता कोई खुदा, कोई खुदा लॉजिक पे नहीं ठहरता। नहीं तो इतने पढ़े लिखे लोग जाहिल नहीं है कि वो लोग सीधे सीधे अपना रास्ता बदल लेते हैं। वो सब घमंडी लोग नहीं है। आपको मेरे अंदर घमंड दिखता है? मैं हमेशा आप लोग की हर बात को लेकर चलता हूँ, हमेशा ओपिनियन लेता हूँ आपकी कि क्या करूँ क्या ना करूँ, इसे एक मुद्दे पे छोड़ के, इसे एक मुद्दे पे छोड़ के, क्योंकि मुझे आप लोग पे जरा यकीन नहीं आपके सोचने के तरीके पे। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग इतने ज्यादा ब्रेन वॉक है कि आप सोच ही नहीं पाते लॉजिकली। बाकी हर जगह मैं आप लोगों की राय लेके चलता हूँ, कभी अपना टूटता नहीं। तो आप सोचिए कि घमंडी इंसान का काम है ये, और इतनी सारी बातें क्यों आप अटैच करते हैं उन लोगों के साथ जो नहीं मानते ऊपर वाले को? वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपकी कहानियों में एक दूसरे के खिलाफ ऐसे कंट्राडिक्शन है, हम यकीन कैसे करें? बस इतनी सी बात है, इसकी वजह से वो नहीं मानते आपकी बात, और कुछ नहीं। आपको कोई कहानी में सुना, उसमें एक बार मैंने भी घर बेटा था, बाद में तीसरा बेटा था, तो आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि तीसरा बेटा कैसा आया, आप सवाल करोगे ना। तो वैसे ही सारी कहानियों में कॉन्ट्रडिक्शन हैं, हर एक धर्म की। ठीक है, कहानियों में कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, एक बात कहीं कुछ, एक बात कहीं कुछ, तो आप बोल देंगे ये ऐसे ये ऐसे। अरे अपना दिमाग लगाओ ना कि दो बात क्यों बोल रहा है, ये क्यों नहीं किया, हम ये बोले हम ये बोल रहे हैं, इसका ऐसे मतलब निकालना। इसीलिए कॉन्ट्रडिक्शंस वाली बातों को मान लेना सबके लिए बहुत आसान नहीं होता, तो वो सिर्फ मना कर देते हैं कि हमको नहीं समझ आता ये बात। इतने बात से आपको क्यों मिर्ची लगती इतनी ज्यादा कि आप मौत की सजा दे किसी को? क्योंकि आपका बस चल रहा है वहां पे। अगर मेरे हाथ में पावर होता ना, तो अभी उस एक औरत को बचाने के लिए हम पूरे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते। एक औरत को बचाने के लिए, 4 बच्चों की मां को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देते, उन सारे सारे लोगों पे जिन्होंने सजा सुनाई उसको। औकात कैसे आपकी ये सब बात ये करने की, किसी में समझ नहीं आती है। कोई ना कोई प्लीज, दुनिया में हो किसी को इस तरह की सजा किसी को कुछ बोलने के लिए,
जहां बोलने की आजादी ना हो कुछ नहीं होता। आप गालियां देने दीजिए ना, सहने की क्षमता रखिए, क्योंकि हर चीज पे उछलने से कुछ नहीं होता। आप मेरे कोई आएगा गाली देके जाएगा मेरी बातें सुन करके, तो मैं क्या करूंगा भाई? देखिए उसकी गाली दी, ठीक है, उसकी सोच है। देखिए क्या उसको मेरी राय समझ नहीं आई, मेरी बात समझ नहीं आई। प्रॉब्लम तब होती है जब आप लोगों की लाइफ को फिट करने लगते हैं। बात की बदले तलवार। और इसको कुछ सुनाई करोगे? देखो, जिसके पास जितनी समझ है उतना लेगा। मैंने जितना बोलना था बोल दिया। ये बहुत खतरनाक रवैया है। इसमें ये ऐसा जहर है, इसमें सब जाएंगे। ठीक है। एक समाज, आज फिर से बताता हूं आपको, अगर अमेरिका इतना आगे है तो सबसे बड़ी वजह है तो वहां इन सब चीजों की इतनी जगह नहीं है दोस्तों। वहां खड़े होकर के क्रिश्चियंस अपने गॉड के लिए मजाक वाली बातें बोलते हैं, और फिर भी जो मानना है वो मानते हैं। वो कहते हैं वो मेरा मानना है, तुम्हारा मानना है, मजाक करना तुम करोगे। मेरा मानना मेरा स्पेस है, तुम्हारा मजाक करना तुम्हारा स्पेस है। वो चाहते नहीं वो सुनने के लिए मजाक। जितने रिलीजियस लोग होते हैं वो कॉन्सर्ट और वो पार्टीज नहीं अटेंड करते जहां वो क्या कहते हैं उसको, स्टैंड अप कॉमेडी जो होती है, उसमें नहीं जाते हैं वो सुनने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज नहीं है। आप दूध पीते हो, इसका मतलब बियर ना बेची जाए। कि आप दूध कि आप दूध पीते हैं। तो एक जो मैच्योर सोसाइटी होती है, वहां लोगों के हाथ हाथ में फैसला होता है। ठीक है। हाँ, आप कुछ चीजों को रोकते हैं क्योंकि उसका आफ्टर इफेक्ट होता है, कुछ जगहों पे छोड़ते हैं। आप लोग एक जगह पे लेके आ जाएंगे, मुझे पता है, मैंने बहुत आर्गुमेंट सुने हैं, वो फोटोग्राफी वाले आर्गुमेंट्स, कि कोई मरने जा रहा है तो फंडे दे दीजिएगा। तो दारू पी के तुरंत अगर मर जाएगा कोई तो वो बंद कर दिया जाएगा। सच यही है कि दारू पी के तुरंत नहीं मरता। जितने लोग 100 साल जिए उसमें से कई लोग दारू पीने वाले देखे, इसलिए जब कोई बात क्लियर साबित हो जाएगी तो चीज को रोका जाएगा। ड्रग्स इसीलिए रोका जाता है क्योंकि सामने से ज्यादा कुछ ड्रग्स को अलाउ किया हुआ है, सर्टेन अमाउंट में आप लेते रहिए। ठीक है, क्योंकि उससे उस तरह का इफेक्ट नहीं आता। तो खाली आर्गुमेंट जीतने के लिए कोई बात बोलो, या जाहिल बन के कोई बात मत बोलो। एक्चुअली बोलो, जब तुम उसको मीन करते हो, तुमको उसमें पॉइंट वैल्यू समझ में आता है, अगर वैल्यू समझ में आता है और कोई उस बात को काटता है तो उसको एक्सेप्ट करो कि अरे यार ये वाला बात तो मैंने नहीं सोचा था। अक्सर मेरे से लोग कहते हैं मैं खुद दारू नहीं पीता, आपको पता है, लेकिन मैं कभी नहीं बोलता कि दारू को बैन कर दो यार। अगर कोई आदमी पीना चाहता है तो उसकी राय की पियो। तरीके आप अपना बना सकते हैं, तरीके बना सकते हैं जिससे आप बेहतर तरीके करें कि भाई हरी का कार्ड आप रखें। आपका सिस्टम नहीं करता है, आप ये चलाते हो, मोटर गाड़ी चलाते हो, बंद कर दो। सिस्टम अच्छा बनाइए। एक आदमी कितना दारू एक दिन में पी सकता है, कितना अलाउड है, उतना सैंक्शन करिए, उसको उतना खरीदने दीजिए। बात खत्म है। एक तो अब एक 14 साल का लड़का दारू का बोतल खरीद लेता है जाकर के, ये दारू की खराबी नहीं है। ये एक 14 साल का बच्चा दारू का बोतल खरीद लेता आपकी दुकान से, दारू की प्रॉब्लम नहीं है, दारू नहीं खराब हो जाता इससे। फिर तो जिस सिस्टम से आप पैदा हुए वो सिस्टम ही खराब होगा। जब बच्चा बच्ची इन्वॉल्व हो जाए तो फिर आपके सिस्टम खराब हो तो उन जगहों का करना खराब। तो पर्सपेक्टिव अगर सही नहीं है, समझदार वाली नहीं है, जब तक आप बायस्ड इंसान है, एक सर्टेन फिलोसफी के लिए बायस्ड है और हर सही गलत उसका इग्नोर करने के लिए जा रहे हैं, फिर आपसे कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ उससे की जाती है जिसके अंदर रीजनिंग करने की क्षमता हो, जिसके दिमाग में बात हो कि क्या सही क्या गलत है, हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं, कॉमन ग्राउंड ला सकते हैं। कॉमन ग्राउंड ये है कि यू हैव टू वर्क टुगेदर। स्टॉप थिंकिंग यू आर सुपीरियर और समबडी इज इंफीरियर, दैट्स ऑल। मानने दो, क्योंकि सब माँ बाप की वजह से मान रहे हैं। अब सच बात है, किसी को अपने धर्म के बारे में ज्यादा नहीं पता। ये सब और सिर्फ चलने की चीज है, अच्छी खुशी की चीज है। ईद आई खुशी मिली, दशहरा में खुशी मिली, बस इससे उसके गहराई में सच्चाई ये है, इंसान खुशी के लिए भूखा है भाई। दिन रात खटता है, मरता है, एक 4 दिन की छुट्टी मिलती है ना फेस्टिवल को, तो वो लाइफ को एक रीएनर्जाइज कर देगा अपने परिवार के साथ में। ये है कॉमन ग्राउंड। ये जब मानोगे तो किसी के फेस्टिवल में प्रॉब्लम नहीं होगा तुम्हें। जहां उसके डिनर में जाके देखो कंधे बन के, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम दिखेगी रिलीजन में और फेस्टिवल्स में फटाक से। नहीं तो फेस्टिवल्स एंजॉय करने की चीज है, चाहे वो दशहरा हो चाहे वो ईद हो।
परिवार के साथ खुश रहने की चीज है। एक में दूसरे में तुम्हें गाँव करना है। उसकी कौन सी स्वतंत्र बनने वाली सोच है भाई तुम्हारी? कि एक में तो तुम बहुत खुश होते हो, दूसरे में तुमको लग जाती है, मिर्ची लग जाती है। क्यों? दूसरे लोग क्यों बहुत नहीं है? वो भी कुछ सेलिब्रेट करें, वो भी खुश के साथ। जब तुम आम इंसान करते रहोगे पॉलिटिशियन नहीं सिखाते तुम्हें। मैं कुछ लगा के दूसरे को भी हक है पड़े। किसी को शांति Topic, I guess. ये ब्लास्फेमी वाला था, ये जो पाकिस्तान में हुआ है, 4 बच्चों की सही लोग हैं जो बहुत नहीं करोगे, अब मेरे सामने नहीं करोगे, मैं टीचर हूँ, टीचर कर लोगे, अपने ही बात बोले, वो बात तो नहीं बोले। जिस बात पे इंसान का दिल दहलता है वो बोलता है। एक बच्चा बच्चे को बिना मां के जीना, वो भी किस काम के लिए? अगर उसने चोरी की होती, उसने मर्डर किया होता, मैं समझता पनिशमेंट। उसने मुंह क्या समाज के खिलाफ, इसके लिए उसको मार देंगे हम। Sir, shall we leave this topic? Please, sir. इसी को कहते हैं टॉलरेंस, इसी को कहते हैं जब आपके खिलाफ कोई बोले तो आप कहें हमको मतलब नहीं, तुम बोलो, इसको टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस आप किसी चीज को नहीं कहते, जब तुम्हारे साथी को टॉलरेंस कहते हैं। जब तुम्हारे कोई खिलाफ बोल रहा हो, गलत बोल रहा हो, तभी तुम टॉलरेट करते हो भाई। तो हाँ भाई जाओ तुम बोलो, तुम्हारा बोलने का मैंने बोलो, और मैं आगे भी बढ़ा। हाँ, जाति तौर पे कुछ बोला जाना अलग होता है। मैं आपको कुछ बोलूं एज अ पर्सन, आपकी थोड़ी सर। Sir, I'm audible. ये सुनीता, Sir, shall you leave this topic? Because time is going to. देखो मैं जानता हूं मैंने आज तक जितनी भी बातें करी हैं, कभी मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ है। लेकिन मैटर ये नहीं होता है कि आप कब सक्सेसफुल होंगे। मैं 15 बार आपको सिखाता हूँ कोई चीज और आप फिर भी गलत करते हैं, तो मैं 16वीं बार सिखाता हूँ। ये मेरी पर्सनैलिटी में है। मैंने बोला है जो एक सेंसिबल सही है। चलो वो गलत मत समझो, धारणाएं भावनाएं हो, कुछ कॉन्क्रीट नहीं होता। ना कोई मुसलमान को अल्लाह कमरे में बंद कमरे में छोड़ दिया जाए 4 दिन तो बचा लेगा, ना किसी का भगवान बचा लेगा, ना किसी का जीसस बचा लेगा। ठीक है, एक आदमी को 4 दिन कमरे में बंद करके छोड़ दो, वो खुद से मर जाएगा। कोई उसका नहीं आएगा बचाने। सारे गॉड इनकेपेबल है इंटरफेरेंस के, इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। ठीक है, गॉड्स डोंट इंटरफेयर, दे कैन नॉट इंटरफेयर। ओके, सो प्लीज start taking pride in your religion.